اب لڑکیاں فخر سے اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہیں میں نے فلاں کو بیوقوف بنایا، میں نے فلاں کو بیوقوف بنایا۔ بنا لو سب کو بیوقوف، مگر ایک ذات ہے وہاں ہم کو جانا ہے اور اپنی انگلیوں سے کرنے والے ہر ٹچ کا جواب دینا ہے۔ کل قیامت کے دن جب ہماری زبانیں خاموش ہو جائیں گی، کل قیامت کے دن ہماری انگلیاں بولیں گی ان سے ہم نے کیا کیا ٹچ کیا ہے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ میرے بندو، ہم قیامت کے دن تمہارے منہ کے اوپر تالا لگا دیں گے، تمہارے منہ کو بند کر دیں گے، تمہاری زبان سے کوئی جملہ نہ نکلے گا۔ کل قیامت کے دن تمہارا ہاتھ بولے گا تم نے اس سے کہاں کہاں ٹچ کیا تھا، تمہارا پیر بولے گا تم کہاں کہاں چل کر کے گئے تھے، ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، تمہارے بدن کے چمڑے بولیں گے، تمہارا پورا شریر گواہی دے گا تم نے کیا 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 تھا۔ ہاتھ گواہی دے گا، پیر گواہی دے گا، شریر گواہی دے گا۔ اور یہی نہیں، آپ نے جس کمرے میں بیٹھ کر کے گندا کام کیا تھا، جس دھرتی پر بیٹھ کر کے آپ نے غلط کام کیا تھا، وہ دھرتی بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ کل قیامت کے دن یہ زمین بھی بولے گی، یہ دھرتی بھی گواہی دے گی، یہ زمین بتائے گی اس زمین کے اوپر تم نے کون کون سے پاپ کیے تھے۔ ہم تو بڑے خوش ہیں، ہم تو ماشاءاللہ پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں، ہم تو ماشاءاللہ حاجی بھی ہیں، ہم نے حج بھی کیا ہے، ہم نے عمرہ بھی کر لیا ہے، ہم تو پانچوں ٹائم کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ حاجی صاحب ذرا اپنا موبائل دیجئے۔ ارے نہیں مولوی صاحب موبائل نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ موبائل وہ جانتا ہے جو میں نہیں جانتا۔ انسان کے بارے میں آج کے دور میں جتنا اس کا موبائل جانتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ موبائل سب بتا دیتا، ہماری ہسٹری بتا دیتا، ہم نے کیا کیا دیکھا ہے، یوٹیوب پر کیا کیا دیکھا ہے، فیس بک پر کیا کیا دیکھا ہے، انٹرنیٹ پر کیا کیا دیکھا ہے۔ موبائل تو پورا گواہی دے دیتا ہے۔ موبائل، حاجی صاحب بھی موبائل کے اندر گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، حافظ جی بھی دیکھ رہے ہیں، لمبی لمبی داڑھی والا بھی دیکھ رہا ہے۔ اب تو سب آسان ہو گیا، جیو کا ریچارج کرا لیا 180 روپے کا، اب انٹرنیٹ 2 GB 1 GB مل رہا ہے، اب اس کو خرچ کرنا ہے، اب ہماری مرضی ہم جو چاہے دیکھیں۔ رات کا ٹائم ہے، اکیلے بیٹھے ہوئے کمرے میں کون دیکھ رہا ہے؟ ہمارے حج برباد ہو جائیں گے میرے بھائیوں، ہمارے عمرے برباد ہو جائیں گے۔ ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ذرا دل کو تھام کر کے یہ حدیث سنیے گا۔ اگر آپ کو اپنی نیکیوں کی چنتا ہے، اگر آپ کو اپنے حج کی چنتا ہے، اگر آپ کو اپنے نماز اور روزے کی چنتا ہے تو ذرا اس حدیث کو غور سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، یاتون بحسنات امثال جبال تہامۃ بیزن۔ کل قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، حج بھی لے کر کے آئیں گے، عمرہ بھی لے کر کے آئیں گے، روزہ نماز اور تلاوت بھی لے کر کے آئیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ فَيَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا، ان کی نیکیاں دھول کی طرح اڑ جائیں گی، جیسے دھول اڑتی ہے سڑک کے اوپر جب گاڑیاں چلتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا دھول اڑتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دھول کی طرح ان کی نیکیاں اڑ جائیں گی۔ صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے مگر اللہ تعالیٰ کہ یہاں ان کی نیکیاں شمار نہیں کی جائیں گی۔ بھئی اصل چیز تو رزلٹ ہوتا ہے نا۔ یو پی کے اندر چناؤ ہونے والا ہے، سب کو 10 تاریخ کی فکر ہے، 10 کو کیا رزلٹ آئے گا۔ الیکشن کے بعد رزلٹ کی فکر ہوتی ہے۔
एग्जाम के बाद रिजल्ट की फिक्र होती है, क्योंकि रिजल्ट के ऊपर सब डिपेंड होता है, रिजल्ट क्या आने वाला है, परिणाम क्या आने वाला है। हम दुनिया में नेकी करें और कल कयामत के दिन अल्लाह ताला के कैलकुलेटर में, अल्लाह ताला के मीटर में, अल्लाह ताला के हमारे नामे अमाल में हमारी नेकियों के कॉलम में 0 लिखा हो, और वहां लिखा हो इसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, इसने कोई रोजा नहीं रखा, इसने कोई हज नहीं किया, तो मेरे भाइयों ये तो बड़ी बदनसीबी की बात हो जाए। किसान बेचारा मेहनत करे, अपने खेतों पे रात दिन मेहनत करे, और जब फसल काटने का टाइम आए तो जाके देखे पूरे खेत में आग लग गई है, पूरी फसल बर्बाद हो गई है, तो बताओ उस किसान के दिल पर क्या गुजरे। साहबी ने पूछा, अल्लाह के नबी, वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे मगर उनकी नेकियों को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा। आपने फरमाया, अमा इन्नहुम इख्वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम, ऐ मेरे सहाबा, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे, युसल्लूना कमा तुसल्लून, वो तुम्हारी तरह नमाज पढ़ेंगे, वो तुम्हारी तरह रोजा रखेंगे, वो तुम्हारी तरह रातों में इबादत भी करेंगे, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, लेकिन वो अकेले में गंदे काम करेंगे, वो तन्हाई में गंदे काम करेंगे, अकेले में वो मोबाइल पर गंदी तस्वीरें देखेंगे, अकेले में वो लड़कियों से चैटिंग करेंगे, अकेले में वो ज़िना करेंगे, अकेले में वो बदकारियां करेंगे, उनकी तन्हाइयां गुनाहों से भरी होंगी, वो तन्हाई में गलत काम करेंगे। मेरे भाइयों, हिसाब तो देना पड़ेगा। रिजल्ट आता है दुनिया में, स्टूडेंट को पता चल जाए मैं पास हो गया, स्टूडेंट खुश हो जाता है, घर में आके बताता है बाप को बड़ी खुशी के साथ, अब्बा जान मैं पास हो गया, मैं इंटर का रिजल्ट आ गया है, आपका बेटा पास हो गया। बच्ची आती है बाप से कहती है खुश होकर के, अब्बा जान मैं पास हो गई। खुशी होती है भाई, कामयाबी की खुशी होती है। एक लड़के का रिजल्ट आने वाला था, अब वो बाप से डरता भी था कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा बाप बहुत मारेगा मुझको, तो वो अपने दोस्त से बोला कि यार तू जा और तू कॉलेज में जाकर के पता करके मैं कितने सब्जेक्ट में फेल हूं और कितने सब्जेक्ट में पास हूं। अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूं और तुम आना मेरे पास, अगर मेरे वालिद साहब, मेरे अब्बू जान अगर बैठे होंगे, मेरे पिताजी अगर बैठे होंगे, तो तुम ये मत कहना कि मैं फेल हो गया हूं। अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूं तो तुम ये कहना कि एक मुसलमान भाई ने आपको सलाम कहा है। अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हूं तो कहना कि 2 मुसलमान भाई ने सलाम कहा है, मैं समझ जाऊंगा कि मैं कितने सब्जेक्ट में फेल हूं। दोस्त गया, रिजल्ट देख के आया तो इसका बाप बैठा था, कह रहे यार पूरी उम्मत ने तुझे सलाम भेजा है। समझ रहे हैं, पूरी उम्मत ने तुझे सलाम भेजा है, यानी सारे सब्जेक्ट में तू फेल हो गया है। तो फेल होने की उदासी और पास होने की खुशी स्टूडेंट जानते हैं। इलेक्शन में रिजल्ट आएगा, जो जीतेंगे वो खुशियां मनाएंगे, जो हारेंगे वो अफसोस करेंगे, दुनिया का दस्तूर है। एक रिजल्ट वो भी होगा जो कयामत के दिन आएगा। वो जब रिजल्ट मिलेगा मेरे भाइयों, तो पास होने वालों की खुशी कैसी होगी और फेल होने वालों का दर्द कैसा होगा, आइए जरा उसका नक्शा आपके सामने खींच देते हैं। और मैं क्या खींचूंगा, अल्लाह ने खींचा है अपने कुरान के अंदर। कुरान का 29वां पारा खोलिए, सूरह अल-हक़्क़ा की आयात है। अल्लाह ने कयामत के दिन का नक्शा खींचा है कि कयामत के दिन जब रिजल्ट मिलेगा तो जो लोग पास हो जाएंगे और जो लोग फेल हो जाएंगे, दोनों के बीच में क्या अंतर होगा, क्या डिफरेंस होगा, अल्लाह ने उसको बयान किया है। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, कल कयामत के दिन जब तुम अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाओगे तो तुम्हारी कोई चीज छुपी हुई नहीं होगी, तुम कोई चीज छुपा नहीं पाओगे। दुनिया के अंदर मंत्री का बेटा अपनी स्कॉर्पियो चढ़ा देता है और 4 किसान मौके पर मर जाते हैं। अदालत का फैसला आता है, मंत्री जी का बेटा कार भगा रहा था, गलती से 4 लोग उसकी कार के नीचे आ गए, तो कार चलाने वाले की कौन सी गलती है?
जज ने ये कह करके बेल दे दी और मंत्री का बेटा आज अदालत से जमानत पर रिहा हो गया। कल क़यामत के दिन की अदालत में कोई नाइंसाफी नहीं होगी, कोई बेईमानी नहीं होगी, वहां कोई झूठ नहीं चलेगा। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, कल क़यामत के दिन जब तुम अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई भी अमल छुप नहीं पाएगा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसका नाम आमाल उसके दाहिने हाथ में दे दिया जाएगा, उसके राइट हैंड में दे दिया जाएगा, उसके सीधे हाथ में दे दिया जाएगा। फयकूल, वो कहेगा हाउम क़ुरऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। ओ लोगो, ये देखो, ये मेरा रिजल्ट है, ये मेरा नाम आमाल है, मैं तो पास हो गया, मैं तो कामयाब हो गया, मुझे यकीन था मुझे यही हिसाब मिलेगा। दाहिने हाथ में जिसको रिजल्ट मिलेगा वो पास हो जाएगा, वो कहेगा मुझे यकीन था मुझे यही रिजल्ट मिलेगा। जब मेरे गांव की लड़कियां स्कूल और कॉलेज में दोपट्टा भी अपने सर पर नहीं रखती थी और स्कूल और कॉलेज में वो बगैर दोपट्टे के जाया करती थी, मैं तो मुकम्मल पर्दे में जाया करती थी। और शायद मुस्कान नाम की वो लड़की भी कल क़यामत के दिन खड़ी होगी और अल्लाह की बारगाह में कहेगी, आए अल्लाह, जब 40-40 गुंडे अपने झंडे लहरा रहे थे और नारे लगा रहे थे और मैं अकेली थी और वहां पर कोई मेरा सपोर्ट करने वाला भी नहीं था, मैं हिजाब में थी, मैं बुर्के में थी, मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा था, मैं हिजाब उतार दूं, मैं बुर्का उतार दूं, मैं पर्दा छोड़ दूं। ऐ अल्लाह, उन 40-50 गुंडों के बीच में तेरी इस बंदी ने अल्लाह अकबर का नारा भी लगाया था और बड़ी शान से अपने कॉलेज में दाखिल हुई थी। ऐ अल्लाह, मैंने अपने हिजाब को उतारा नहीं था, मैंने अपने पर्दे को उतारा नहीं था। पर्दा करने वालियां तो बेचारी कॉलेज में पर्दा कर रही हैं, डंडे खा रही हैं। अभी आज की न्यूज है, कर्नाटक के स्कूल में लड़की गई पर्दे में, हिजाब में, स्कूल की टीचर ने कहा नहीं, आपको हिजाब उतारना पड़ेगा तब हम आपको स्कूल में जाने देंगे। आज ये भी हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है, हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। हमारी मुसलमान लड़कियां आज मजबूर हैं ऐसे कॉलेज में पढ़ने के लिए, ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए जहां स्कूल की टीचर और कॉलेज का प्रिंसिपल मजबूर कर रहा है उनको कि आपको हमारे स्कूल के कानून पर चलना पड़ेगा, आप अपनी शरीयत का कानून अपने घर में चलाइए, हमारे स्कूल में आपको स्कूल के ड्रेस में आना पड़ेगा और आपको अपना हिजाब छोड़ना पड़ेगा। मुसलमान आज शादी करता है तो कई कई लाख रुपए खर्च करता है। हर साल मुसलमानों की शादियों पर कई अरब रुपए खर्च होते हैं, जलसे और कॉन्फ्रेंसों पर कई अरब रुपए खर्च होते हैं, अपने मकान की डिजाइनिंग पर और मकान के डेकोरेशन पर हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। जिस कौम का ये हाल हो, उस कौम की बच्चियां आज धक्के खा रही हैं, स्कूलों के बाहर खड़ी हैं, उनको हिजाब उतार के तब स्कूल में जाना पड़ रहा है। चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। काश कि हम होश के नाखून लेते और हम अपनी बच्चियों को ऐसा स्कूल बनवाते, ऐसा कॉलेज बनवाते, ऐसी यूनिवर्सिटी बनवाते जहां हम आजादी देते कि मुसलमान लड़की अगर पढ़ेगी वो हिजाब में आ सकती है, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। आज अफसोस की बात है, एक तरफ वो लड़कियां हैं जो हिजाब के लिए लड़ रही हैं और एक तरफ हमारे और आपके घर में लड़कियां निकल रही हैं, जलसे में आई हुई हैं, बन करके, समर करके, चमकदार कपड़े पहन करके। उनको पर्दा करने की जरूरत नहीं है। और बड़े अफसोस की बात है, 50 साल की बूढ़ी औरत आती है, वो बेचारी अपना चेहरा ढांप करके आती है, अपने पल्लू को लटका करके आती है, अपने बदन को ढांप करके आती है, और 18 और 20 साल की जवान लड़की वो सीना तान के चल रही है, वो अपने नुमाइश, अपने जिस्म की नुमाइश करके चल रही है, वो मेकअप करके सच के संवर के चल रही है, और जलसे में भी ऐसे ही जा रही है, और प्रोग्रामों में भी ऐसे ही जा रही है, और बाजार में भी ऐसे ही जा रही है। मेरे भाइयों, मुझे मोहब्बत है आपसे, अल्लाह की कसम मुझे मोहब्बत है आपकी कौम से। मैं बड़े फख्र से कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में
کہ ہم نے ایک ایسی قوم کو بھی دیکھا ہے کہ کٹیہار سے لے کے پورنیہ، ارریہ، فوربسگنج، کشن گنج، پورا ایک بیلٹ ہے، ہمارے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں، وہاں مزار نہیں ہے، وہاں قبر پرستی نہیں ہے، وہاں غلط کام نہیں ہے۔ مگر جب ہم آپ کے علاقے میں آتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے یہاں پردہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے میرے بھائی۔ کیوں؟ کیا اس پردے کا تعلق انصاری برادری سے ہے، شیخ برادری سے ہے، شیرشاہ بادی برادری سے نہیں ہے؟ پردہ کسی برادری کے لیے تو نہیں آیا ہے میرے بھائی، پردہ تو ساری امت کی عورتوں کے لیے آیا ہے۔ اور پردے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا تھا اور مسکان نام کی اس لڑکی نے آج بتا دیا۔ ٹک ٹاک پر اپنے بدن کی نمائش کرنے والی لڑکیاں شاید اتنی مشہور نہیں ہوئی ہیں جتنی مسکان نام کی وہ لڑکی آج مشہور ہو گئی ہے۔ آج دبئی کی سب سے اونچی جو عمارت ہے برج خلیفہ، آج برج خلیفہ پر بھی مسکان نام کی اس لڑکی کا فوٹو آیا اور اس کا نام آیا، اور دبئی کی حکومت نے بھی مانا کہ ہاں یہ لڑکی، اس نے ہمارا نام روشن کیا۔